Good evening, students. Our next topic is genetic disorders. Genetic disorders are related to the gene or chromosome. So they are of two types: Mendelian disorders and chromosomal disorders. What we are going to study after this topic, pedigree analysis. Pedigree analysis is type of analysis of a trait in several of generations of a family is called a pedigree analysis. In pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. What do you understand by this one? It is the study of a particular trait only. Study of particular trait. See, particular trait for a different generations. Clear? Several generations in a family. ये वैसा ही है जैसे एक फैमिली ट्री बनाया जाता है जिसमें हम लोग ऐसे कहें कि ये ब्रांचेज हैं इस तरह से, इनमें से ये आगे ब्रांचेज निकली और ये ट्री है. इस ट्री की जो रूट्स हैं, रूट्स मान लो ग्रैंड फादर हो गए, जैसे फिर फादर हो गए, जैसे फादर, ये सन, ठीक है, ये ग्रैंड सन, इस तरह से. तो ये क्या होगी जनरेशन, वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो इस तरह से डिफरेंट जनरेशन जो है उनकी किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए स्टडी करना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू take a characteristic that is height, what will be the height in the grandfather, and then in father, then in son, and then from son to the grandson. So this is the study of a particular trait, that is called pedigree analysis. There are certain symbols which are useful in the study of pedigree. See, this is for a normal male. It is a this type of structure which is white from inside. Affected male, symbol is square, but it is NCERT it is given red in color. Here it is given in a black color. So it is showing that the male which is affected from some disease. This is normal female, circle, which is white from inside and affected black from inside. अगर ये स्क्वायर एक अलग तरह का स्क्वायर बन रहा है जिसमें साइन जो है थोड़ा सा अलग है, तो इसका मतलब ये सेक्स अननोन है ना, मेल का पता है ना फीमेल का पता है. दिस इज फॉर मेटिंग फीमेल एंड मेल. This, if the two lines are present between male and female, consanguineous mating, father daughter brother and sister, यानी रिलेटिव्स के बीच में जो शादियाँ होती है उनके लिए डबल लाइन लगाई जाती है. This symbol, it is not given in the book. Deceased unaffected. This one is abortion or stillbirth. ये मेल और फीमेल की शादी है और उससे ये बच्चा जो है उसकी डेथ हो रही, ब्लैक कलर में किया गया है, ठीक है. और अगर ये नॉर्मल होता है तो इसको वाइट कलर से दर्शाया जाता है. और एक और सिंबल दिया हुआ यहाँ पे, इंडिविजुअल विदाउट ऑफस्प्रिंग, तो उसके लिए ये सिंबल है. इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन इन द NCERT बुक. So here we are talking about a disorder, genetic disorder. Number one is a pedigree analysis.
Before this one, this pedigree analysis, lot of questions are asked from this one. This is also present in the practical examination, medical examination, NEET exam, and also included in the NCERT board exam. So we are going to take a different class for this special type of topic. Here I am going to skip this topic, and detail we take only a single class for this one. Mendelian disorder. Mendelian disorder means which are related to factor or a gene. That is Mendelian disorder. Number one, hemophilia. This is called bleeder's disease, जिसमें क्लॉटिंग नहीं होती है. ब्लड जब कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्लॉट नहीं होता है, लगातार चलता रहता है, तो इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं. हीमोफीलिया. सिम्टम क्या क्या है? हीमोफीलिया इज डिफेक्ट ऑफ द ब्लड विच प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग. अभी मैंने बात की, यानी इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है. ए सीरियसली अफेक्टेड पर्सन में ब्लीड टू डेथ आफ्टर इवन अ माइनर कट. यानी छोटा सा भी कट लग जाता है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है. कॉज क्या है इसका? इट इज़ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट. ये याद रखना आपको, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी ये सेक्स रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ केस है. बाय द रेसेसिव जीन. यू टू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो. रेसेसिव जीन इसके लिए जिम्मेदार है, और ये मेल और फीमेल यानी सेक्स लिंक एक्स वाई क्रोमोजोम और एक्स एक्स क्रोमोजोम से रिलेशन है इसका. दैट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम. Here it is clearly mentioned. You have to remember all these things. It is sex linked, recessive gene, or it is this recessive gene which is responsible for hemophilia is present on the X chromosome. So X chromosome is present both in the male and female. If it is XY male, then X is present. That may be that carry the hemophilic gene. XX if we talk about female, and both the X can carry hemophilic gene. The gene is control the synthesis of protein needed for the clotting of the blood. अब इसका क्या काम है इस जीन का? ये उस प्रोटीन के सिंथेसिस को के लिए जिम्मेदार है जो ब्लड में क्लॉट करता है. क्लियर? When this gene mutates, it lost its ability to produce coagulant. जब इस जीन में कोई दिक्कत आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ये कोगुलेशन की प्रॉपर्टी, ब्लड क्लॉट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है. नॉर्मल ब्लड डोमिनेंट टू द डिफेक्टिव ब्लड. तो इस तरह से ये डोमिनेंसी है इसमें. नॉर्मल ब्लड इज डोमिनेट ओवर द डिफेक्टेड ब्लड. हियर द सम केस स्टडीज आर गिवन. इफ देयर इज ए हेल्दी वुमेन, सी if there is a healthy woman XX and this is man which is hemophilic, it means H is representing the hemophilia, X is the chromosome. हमने अभी भी बात की X के ऊपर रहेगा H हमेशा. तो अगर मैन अफेक्टेड है, फीमेल, ऐसे मेल फीमेल की शादी हो जाती है अगर, तो क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे आप जब क्रॉस करोगे तो ये गैमेट्स बन जाएंगे. ये अलग गैमेट, ये अलग गैमेट, जो क्रॉस हमने सीखी हुई है, चारों के चारों अलग अलग गैमेट बन जाएंगे. और इन गैमेट्स का जब क्रॉस करेंगे तो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी वो कैसी रहेगी? देखिए, दोनों के दोनों जो फीमेल है वो कैरियर रहेगी, और मेल जो रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे. कैरियर क्यों रहेगी? क्योंकि एक जो ये मेल जो हीमोफिलिक था, ये एक एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल में आ गया है. क्योंकि फीमेल के अंदर एक नॉर्मल है एक्स क्रोमोसोम और एक हीमोफिलिक है, तो ऐसी फीमेल्स को कैरियर कहा जाता है. कैरियर मीन्स व्हाट? इनके अंदर वो जीन रहता है जो हीमोफिलिया कर सकता है, लेकिन ये खुद हीमोफिलिक नहीं होती है. क्लियर? फीमेल तभी हीमोफिलिक होगी जब उसके अंदर ये कंडीशन होगी XHXH, यानी दोनों के अंदर H आना चाहिए, तभी वो हीमोफिलिक होगी. अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसको कहते हैं कैरियर. इसका याद रखना आपको पॉइंट को, कैरियर.
और देख लेते हैं अपन आगे। सी दिस वन, नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल। अगर ऐसा केस है, मेल नॉर्मल है, यहाँ पे फीमेल में कैरियर है, तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए आप, नॉर्मल सन पैदा होगा, हीमोफिलिक सन पैदा हो रहा है, डॉटर नॉर्मल और कैरियर डॉटर पैदा हो रही है। ठीक है, और आगे केस देख लेते हैं। ये देखिए फादर है हीमोफीलिया, यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। मदर इज कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया, मदर के पास भी एक हीमोफिलिक एक्स है। इस कंडीशन का क्या होगा, 50% चांस सन विल हीमोफीलिया, क्लियर, 50% हीमोफीलिया होने के चांसेस है। 50% डॉटर कैन बी कैरियर, 50% चांस डॉटर विल हैव हीमोफीलिया। तो हमने ये सारी कंडीशन देख ली है कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के साथ में किस तरह की क्रॉस हो सकती है। व्हेन फादर इज हेमोफीलिया देन मदर इज अनअफेक्टेड, ये हेमोफिलिक फादर है, ये अनअफेक्टेड है, हमने पहली क्रॉस ही देख ली थी। नन ऑफ द सन विल हैव हेमोफीलिया, ऑल द डॉटर विल कैरी द हेमोफीलिया जीन। व्हेन द मदर कैरी द हेमोफीलिया जीन एंड द फादर इज अनअफेक्टेड, यहाँ देखिए आप लोग, 50% chance of each birth that son will have hemophilia, there are 50% chance of each birth that daughter will carry hemophilic gene। यहाँ एक पॉइंट आता है, उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, नाम याद रखना आपको, क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस को जिग जैग पैटर्न भी कहते हैं, जिग जैग, नाम याद रखने दोनों आपको, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज क्रिस क्रॉस पैटर्न, व्हाट इज जिग जैग पैटर्न। इसका मतलब ये है कि जब भी ये जीन चलेगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए मदर फादर हीमोफिलिक है, तो आप देखेंगे ये फादर यहाँ पे है, और इससे डॉटर के अंदर हीमोफीलिया जा रहा है, फादर से डॉटर में जा रहा है, क्लियर। और मदर, यहाँ पे मदर हीमोफिलिक है, देखिए दोबारा, यहाँ फादर हीमोफिलिक है तो फादर से डॉटर में जा रहा है। यहाँ मदर हीमोफिलिक है तो मदर से किस में जा रहा है, सन के अंदर। अगर मदर हीमोफिलिक कैरियर रहेगी तो उसका सन जो रहता है उसके ऊपर पूरे चांसेस है कि वो हीमोफिलिक हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि फादर से हमेशा डॉटर के अंदर जीन कैरी करेगा और मदर से हमेशा सन के अंदर कैरी करेगा। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। फादर से उसकी डॉटर में गया, डॉटर से उसके सन में जाएगा वापस, मदर से उसके सन में, सन से वापस उसकी डॉटर में। तो इस तरह से चलता है, फादर से डॉटर में क्रिस क्रॉस जिग जैग पैटर्न है ये। फादर से डॉटर में, डॉटर से वापस सन में, मदर में है तो उसके सन में, सन से उसकी डॉटर में। तो इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न या जिग जैग पैटर्न। नेक्स्ट डिजीज इज सिकल सेल एनीमिया। दिस इज एन ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट that can transmitted from parent to offspring when both the parents are carrier of the gene। जब दोनों पेरेंट्स कैरियर हो तभी ये ऑफस्प्रिंग में जाएगा, यानी कि हेट्रोजाइगस होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों, तभी ये आगे कैरी करेगा। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA, हीमोग्लोबिन A, HbS। SBS का मतलब हीमोग्लोबिन सिकल सेल। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस कंडीशन इंडिविजुअल HbS शो द डिजीज फिनोटाइप। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिकल शेप RBC। सिकल शेप RBC यानी RBC बाइकॉन के होती है जनरली, अगर उसमें हीमोफीलिया हो गया है तो वो सिकल शेप की बन जाएगी, दैट इज सिकल शेप्ड एनीमिया।
It is characterized as sickle cell RBC formed under the low oxygen condition. Change in the shape of RBC is due to the presence of defective type of hemoglobin called sickle cell hemoglobin or hemoglobin S. Sickle cell is heterozygous condition, protect the person against the malaria. देख लीजिए आप ये पिक्चर में, यहाँ पे ये नॉर्मल आरबीसी है, ये सिक्कल शेप्ड है सारी। क्लियर? सिक्कल शेप का मतलब है इसमें हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, वो डिफेक्टिव हो गया है। डिफेक्टिव होने की वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई है। जब ये कम हो जाती है, क्योंकि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, वो इसी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। हीमोजॉइन कंडीशन, हीमोजॉइन केमिकल जो है यहीं से रिलीज होता है, जिससे मलेरिया के सिम्टम, ठंड लगने का, चिलनेस का नज़र आता है। तो अगर सिकल शेप्ड बन गया है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी आएगी तो प्लाज्मोडियम के सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे। प्लाज्मोडियम के सर्वाइवल के चांस कम होंगे तो वो मलेरिया से बच जाएगा। अगर वो सिकल शेप्ड है, सिकल सेल एनीमिया उसको हो रखा है, तो वो पर्सन मलेरिया से बच जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन। सी, फादर इज सिंगल सेल ट्रेट, मदर इज सिंगल सेल ट्रेट, दोनों के पास में दोनों कैरियर हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चाइल्ड विद सिकल सेल ट्रेट, ठीक है, चाइल्ड विद सिकल सेल ट्रेट, चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया, हेल्दी चाइल्ड। तो चांसेस क्या है, अगर दोनों कैरियर हैं, दोनों कैरियर का मतलब क्या हो गया, HbA HbS, ये इस तरह से है। फादर भी ऐसे HbA HbS, ये इनके बीच में क्रॉस है। मदर के पास ये, फादर के पास ये, तो इनमें से अगर इनकी क्रॉस करेंगे हम लोग तो ये इंडिविजुअल अपने को मिलेंगे। सिकल सेल जीन कैरियर, सिकल सेल जीन कैरियर, अभी वाली क्रॉस है, इसमें भी क्या होता है, ये रहा जिसको डिजीज़ है, ये दो कैरियर हैं, ये सिकल सेल नहीं है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक और चीज़ होती है जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बुक के अंदर ये पिक्चर दी हुई है। हम जो अभी बात कर रहे थे किस तरह से सिकल सेल एनीमिया होता है, ये जो दो पिक्चर दिख रही है आपको, इन पिक्चर्स के अंदर दिस इज डीएनए, नॉर्मल जीन का डीएनए है, ये डीएनए से आरएनए जो बनता है वो है, और ये आरएनए से बनने वाले प्रोटीन है। यानी ये सेंट्रल डोगमा चल रहा है यहाँ पे। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, डीएनए, आरएनए, और आरएनए से अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन बनाती है। तो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा तो उसके लिए ये सीक्वेंस चलेगा। ये जो जीन है हीमोग्लोबिन HbA के लिए जिम्मेदार जो है, ठीक है, HbA यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसमें GAG और CTC ये कोडॉन का पेयरिंग रहता है, और mRNA जब बनता है तो इस यहाँ से CTC का कोडॉन कोड कॉम्प्लीमेंट स्टैंड बनाता है GAG। ये GAG रिस्पॉन्सिबल है एक अमीनो एसिड के लिए जो ग्लूटामिक एसिड बना है, 6th नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड। क्लियर? 6th नंबर प्रोटीन अमीनो एसिड जो बनता है वो बनता है ग्लूटामिक एसिड। Now this glutamic acid, ये जो ग्लूटामिक एसिड बना है, ये ग्लूटामिक एसिड इस पूरी चेन का हिस्सा है। 6th पोजीशन पे ये चेन है HbA पेप्टाइड की, प्रोटीन की। और यही अगर डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनता है जो HbS है, सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन, तो ये
ए की जगह टी आ जाता है यहाँ पे, और उस टी के आने की वजह से कोडॉन चेंज हो जाता है और जी की जगह यहाँ पे mRNA में GUG बन जाता है और ये कोडॉन कोड करता है वैलिन के लिए। तो आप देखेंगे 6th पोजीशन पे ये बीटा हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा। उसकी बीटा चेन जो है उसका 6th नंबर का पेप्टाइड बनाने वाला एमिनो एसिड ग्लूटामिक की जगह वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से आरबीसी सिकल शेप्ड बन जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस वजह से ये ऐसा होता है।